Assalamu alaikum students, welcome back. Can you guys hear me now? Screen nazar aa rahi hai aapko? Okay, perfect guys. Did you guys receive a test? मैंने management को एक 25 questions का test दिया था subject verb agreement पे because we completed subject verb agreement the last time we spoke, which was I guess 2 weeks ago because last week तो बारिश हो गई थी and things were a little bit out of control. Okay, if you did not receive the test so far, don't worry. Inshallah आज की जब आपकी classes खत्म होंगी तो inshallah I'll talk to Sir Imran and I'll make sure that you receive that test. It's going to take you about 15 minutes. It's going to be about 15-20 minutes का test. 25 सवाल हैं कुल मिला के, 15 से 20 मिनट में आपको उसको सॉल्व करना है. उसके बाद आप अपनी आंसर की प्लीज मुझे तस्वीर खींच के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, and then I'll give you feedback on your personal responses. Okay, don't worry and don't even get scared of making mistakes in that test, but attempt every question. Consider that there's no negative marking. Do not skip any question when you attempt them. There are 25 questions in total, and all those questions are specifically based on the topics of subject verb agreement, जिसके 3 rules हमने पढ़े थे. Okay, rule number 1, 2 and 3. Now moving on, because remember in the writing section a major task is to identify the errors in sentences. Having completed subject verb agreement, now our focus is on another set of rules, which is rule number 4, 5 and 6, which are based on non-idiomatic hearing. Now any one of you, does anyone of you know what non-idiomatic hearing is? Beta, I'm on the same group as everyone else. जो SAT और ECAT का ग्रुप बना हुआ है, SAT और BCAT का ग्रुप, उस ग्रुप में मेरा नंबर है. But if you do not have that, don't worry, I'm just gonna type it here. You can WhatsApp me your responses as soon as you're done. आज ही के दिन भेज दीजिएगा please, so that I may have time to check your responses. Beta, this is my number. I've sent it on the Zoom chat. Okay, I'm sure you will find this number on the group as well. So please send me your responses on this number so that I can give you valuable feedback on your responses. Okay, so inshallah आज बेटा हम rule number 4, 5 and 6 को target करेंगे. We have to pace up a little bit, and I would even speak to Sir Imran about scheduling extra classes because we've suffered a bit of a loss already as far as the weather and the conditions of the city were concerned. But let's talk about rule number 4, 5 and 6. Now, does anyone of you know what non-idiomatic hearing is? ये phrase कभी सुना है जिंदगी में? पता है non-idiomatic hearing क्या होती है? Any idea? No? Okay. Well, देखिए, there's a difference between nature and nurture. ये दो अल्फाज तो आपने सुने ही होंगे. Nature and nurture. Nature वो चीजें हैं जो naturally हम इंसानों को पता होती हैं या हमें आती हैं या जो हम जानते हैं, उसको nature कहते हैं. और nurture वो चीजें होती हैं जो हमें दुनिया में आके सीखनी पड़ती हैं. मिसाल अगर मैं आपको दूं तो no one taught you how to blink your eyes. That is nature. No one taught you how to breathe. That is nature. Right? No one told you how to move your hands. That is nature. But nurture की अगर बात की जाए तो गाड़ी चलाना हमने सीखा है दुनिया में आके, बात करना हमने सीखा है दुनिया में आके, चलना हमने सीखा है दुनिया में आके, लिखना हमने सीखा है दुनिया में आके. These things are nurture. Okay, the things that you acquired after coming into this world, after toil and practice. But a non-idiomatic hearing is hardcore nurture. और इसको मैं नर्चर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो कि हम डेवलप करते हैं आफ्टर अ नंबर ऑफ इयर्स, आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब अंग्रेजी जितनी आप पढ़ेंगे, अंग्रेजी आप जितनी लिखेंगे, अंग्रेजी आप जितनी सुनेंगे और जितनी बोलेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी नॉन इडियोमैटिक हियरिंग का लेवल बेहतर होगा. अब क्या होती है नॉन इडियोमैटिक हियरिंग बेटा? इट इज एन एबिलिटी दैट यू एंड आई डेवलप दैट टेल्स अस if a sentence is grammatically correct or not. मतलब जुमला सुन के उसमें एरर को आइडेंटिफाई करने का हुनर नॉन इडियोमैटिक हियरिंग कहलाता है. आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है उसमें
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स या मुख्तलिफ टीम्स के जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी अंग्रेजी साफ नहीं होती, वो अंग्रेजी बोल रहे होते हैं और हम सुनते ही महसूस कर लेते हैं कि ये जो कह रहा है वो कुछ थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में। तो वो स्किल जो कि आपको महसूस कराती है कि सुनने में कोई चीज अजीब लग रही है, वो उस स्किल को हम नॉन इडियोमैटिक हियरिंग कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानी टीवी एक्टर्स, अदाकारा मीरा जैसे, जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम सुनते हैं, हम कहते हैं मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कौन सा रूल इस्तेमाल हो रहा है इसमें, which grammatical rule is being used in this sentence, मुझे कौन से टीचर ने कौन सी किताब के जरिए ये रूल पढ़ाया था, लेकिन ये जो कह रहा है, ये जो कह रही है सुनने में अजीब लग रहा है। तो वो हुनर नॉन इडियोमैटिक हियरिंग कहलाता है बेटा। और नॉन इडियोमैटिक हियरिंग स्किल, अभी जैसे हम 9 लोग बात कर रहे हैं, अभी क्लास में 9 लोग मौजूद हैं, हम सबका नॉन इडियोमैटिक हियरिंग का लेवल मुख्तलिफ है एक दूसरे से, हम सबका नॉन इडियोमैटिक हियरिंग का लेवल मुख्तलिफ है। और क्यों है मुख्तलिफ? क्योंकि हो सकता है मैंने 5 किताबें पढ़ी हैं आज तक जिंदगी में, तो क्लास में मौजूद सऊद ने 12 किताबें पढ़ी हुई हैं, क्लास में मौजूद उस्मान ने 15 किताबें पढ़ी हुई हैं, क्लास में मौजूद हानिया ने 20 किताबें पढ़ी हुई हैं। तो यकीनन चूंकि हानिया ने हम सबसे ज्यादा वक्त दिया है क्लास में, यकीनन क्योंकि हानिया ने ज्यादा वक्त गुजारा है अंग्रेजी के साथ, शी डिजर्व्स टू हैव अ बेटर कमांड ओवर नॉन इडियोमैटिक हियरिंग। ओके, आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा वक्त गुजारेंगे एक जबान के साथ, उतनी ही ज्यादा आपकी नॉन इडियोमैटिक हियरिंग पॉलिश होती चली जाएगी। तो दिस इज वन एरिया, रूल नंबर 4, 5 एंड 6, ये एक एरिया है जिसमें हमें सुन के गलती पकड़नी होगी। जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ लिखा भी है, रूल नंबर 4, 5 एंड 6 आर बेस्ड ऑन नॉन इडियोमैटिक हियरिंग। एंड यहाँ पे अक्सर बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, दैट्स द वे आई लाइक टू पुट इट इन क्लास। अक्सर बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी पिछले 17-18 साल की जिंदगी में उन्होंने कितना अंग्रेजी के साथ वक्त गुजारा है वो यहाँ वाज़ा होना शुरू हो जाता है। It becomes pretty apparent. Okay, so inshallah we'll move on and we'll talk about non-idiomatic hearing in quite some detail. But as I told you, 4, 5 and 6 में हम सुन के गलती पकड़ेंगे. Let's talk about rule number 4. Now I believe you guys are in A levels and O levels, A levels के अंदर ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती काफी ज्यादा डिटेल में. We base a lot of our grammatical understanding on non-idiomatic hearing, but there, when you're preparing for SAT beta, you have to digest a couple of rules, and even if it's tough for you, you have to meet that challenge. तो rule number 4 जो है वो बेटा confusion between simple past and past participle के हवाले से. अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये टर्म्स, मतलब जिन्होंने ये टर्म्स कभी नहीं सुने होंगे पहले, आपको ये टर्म्स बहुत यूनिक लग रहे होंगे. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप YouTube पे जाके वीडियोस देखना शुरू हो जाएं सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से, तो आप शायद घंटों भर की वीडियोस देख लेंगे. बहुत सारी बातें हैं जो कि सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से यूट्यूब पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, ग्रामेटिकल वेबसाइट्स पे मौजूद है. लेकिन मैं आपको सैट की अगर तैयारी कराऊं तो देखें, सैट इंस्ट्रक्टर मस्ट नो कौन से टॉपिक को कितनी डिटेल में कराना है, कीपिंग इन माइंड the level of difficulty of the exam. So as far as your SAT 1 exam is concerned, beta, there's only one thing that you need to memorize regarding simple past and past participle. सिर्फ एक चीज याद कर लीजिएगा, YouTube के तमाम लेक्चर्स आपके लिए इस पॉइंट के मुताबिक थोड़े इररेलेवेंट हो जाएंगे, और वो एक चीज क्या है ये मैंने आपके सामने लिख दी है कि जब सिंपल पास्ट की बात की जाए तो सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस होता है जिसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड नहीं होता. A simple past tense stands on its own. Whereas when we talk about past participle is a verb which always requires a helping verb to support it. तो अगर मैं simple past helping verb के साथ लिखूंगा तो वह acceptable नहीं होगा. इसी तरीके से अगर मैं past participle बगैर helping verb के लिखूंगा तो वो भी acceptable नहीं होगा. अब ये सुनने में तो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है. Let's look at the example. I've written a very simple sentence down here so that you can digest what I'm saying. Consider the following example. Extreme stress driven John to the brink of a nervous breakdown. Brink कहते हैं किनारे को, नहज को. तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था जॉन पे, तो वो बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन के करीब आ गया था. अब जुमला तो समझ में आ रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग दैट डज नॉट साउंड राइट. याद रखिएगा, रूल नंबर 4 इज बेस्ड ऑन नॉन इडियोमैटिक हियरिंग. सुन के गलती पकड़नी है. ये लफ्ज सुनने में अजीब लग रहा है, ड्रिवन. अब जब हम इसकी डेप्थ में घुसते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई ड्रिवन अगर गलत लग रहा है तो क्यों गलत लग रहा है, इसकी जगह क्या सही होगा, तो आप समझ लीजिए ड्रिवन इज अ पास्ट पार्टिसिपल. And I just told you that past participle needs a helping verb to support it.
तो या तो आप कहें had driven, आप देख सकते हैं driven as it is लिखा हुआ है और had उससे पहले मैंने helping verb लगा दिया, या तो फिर मैं अगर इस पूरी एफर्ट को अवॉइड करना चाह रहा हूं तो मैं ड्रिवन की जगह हैड ड्रिवन ना लिखूं, मैं सिर्फ ड्रोव लिख सकता हूं, बिकॉज ड्रोव इज सिंपल पास्ट दैट डज नॉट रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब। दोनों सूरतों में सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। या तो मैं कहूंगा एक्सट्रीम स्ट्रेस ड्रोव जॉन टू द ब्रिंक ऑफ ए नर्वस ब्रेकडाउन, या फिर मैं कह सकता हूं एक्सट्रीम स्ट्रेस हैड ड्रिवन जॉन टू द ब्रिंक ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन। बट लव्स ड्रिवन लिखना बजाते खुद एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलवेज रिक्वायर्स अ हेल्पिंग वर्ब। एंड अगर मैं लिख देता, फॉर एग्जांपल अगर जुमले में लिखा होता हैड ड्रोव, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि ड्रोव इज अ सिंपल पास्ट एंड दैट नेवर रिक्वायर्स एन एसोसिएटेड हेल्पिंग वर्ब विद इट। ड्रोव सिंपल पास्ट है, आप हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इज दिस एग्जांपल क्लियर? I have a couple of other examples as well, but let's talk about this example right now. कोई सवाल है बेटा? Any questions? All clear, guys? Okay, perfect. So it's very simple. Okay, straightforward है। आगे जरा दो तीन और examples लिखे हैं मैंने इसी concept के ऊपर based। याद रखिएगा, simple past helping verb required, no helping verb required, past participle always helping verb required। पहली example देखिएगा अब यहाँ, The Cessna 172 जहाज का नाम है, एक एयरप्लेन का नाम है, मॉडल है। The Cessna 172 had flew over 5 lakh miles, 500,000 miles before crashing into the hills. Okay, now you can see fly hota hai. Let me write this down. We have the first form of the verb fly, and then we have flew, and then we have flown. Okay, so yaad rakhiyega, this is the first form, this is the second form, this is the second form, and this is the third form. Second form जो simple past है उसके साथ helping verb नहीं लगाना। यहाँ आपको नजर आ रहा है flew is a simple past जिसके साथ गलत helping verb लगा हुआ है, that's not acceptable, right? And that is something that we need to fix. So there are two ways in which you can fix it. या तो आप flew लिखें which is simple past without the helping verb, या फिर आप had flown लिखें, third form है ना, तो सिर्फ past participle है, उसके साथ helping verb associated जरूरी है। So there are two ways in which you can fix the sentence. The Cessna 172 flew over 500,000 miles, या फिर the Cessna 172 had flown over 500,000 miles before crashing into the hills. Okay, so that's example number 2. Let's talk about number 3, and then I'll take your questions if you have any. Susan drunk Susan drunk a little too much at her university farewell party. Okay, now you know, let's talk about the first, second, and third form. So we have drink, drink. Second form, drank. ये इसका simple past हो गया, simple past is second form. तीसरा हो गया drunk. Okay, तो अब जब drink, drank, drunk की बात की जाए तो you know कि drunk के साथ helping verb लगेगा क्योंकि वो past participle है। helping verb लाजमी चाहिए मुझे, I need a helping verb with it. And अगर drank की बात की जाए तो बेटा drank is a simple past, I do not need a helping verb with it. So there are two ways in which I can fix the sentence. Either I can say Susan drank a little too much, या फिर I can say Susan had drunk a little too much. Okay, so it's very simple. Now what I'm trying to make you understand is, remember, let's go back to the basics. We're talking about error identification, which is a major chunk of your writing section. Okay, you will have passages which will have sentences that are grammatically incorrect. Remember, when you're reading the text, you have to read and feel if that sentence sounds right or wrong. And how will you feel if that sounds right or wrong? One of the 3 rules which are based on non-idiomatic hearing is telling us about the concept of simple past and past participle. Jahan simple past ke saath no helping verb required, and past participle ke saath you always require a helping verb. So if you have a sentence like the one written in front of you, extreme stress driven John to the brink of a nervous breakdown, यहाँ अगर आप नजर दौड़ाएं और आप देखें कि भाई लफ्ज driven खटक रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है, तो ये आपकी नॉन इडियोमैटिक हियरिंग स्किल है जो कि आपको ये बात बता रही है कि ये सुनने में अजीब लग रहा है। अब अगर आप इसको फिक्स करने की बात करें तो there are 2 ways in which you can fix it. As I told you, write it in the simple past form without the use of a helping verb, or you can write it in the past participle form with the use of an appropriate helping verb. Okay,
So that's something that you need to keep in mind. Any questions regarding rule number 4? Please मुझसे जरा पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, please. I'm scanning the chat box, guys. Any questions? Okay, cool. So beta, please don't, I would recommend you not to delve deep into YouTube videos, because trust me, I know a lot of students who've gone to YouTube, who've searched simple past and past participle, and इतनी सारी videos हैं मुख्तलिफ countries की, बांग्लादेश की videos हैं, India की videos हैं, Australia की videos हैं, New Zealand की videos, too overwhelming. In my opinion, they provide you with so much information which is not required for your SAT-1 exam. Remember, I know the depth in which we have to study. Subject verb agreement बहुत detailed topic है, इसलिए हम लोगों ने 2 मखसूस classes spend की उसके ऊपर. In fact, अगर एक आध और भी live session में उसके ऊपर spend करना चाहूँ तो I wouldn't regret, because it's super important. When it comes to rule number 4, not so important. So जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही ज़हन में रखिएगा. अगर मेरी बताई हुई बातों में कोई question है तो पूछ लीजिए, नहीं तो you do not need to scour YouTube websites वगैरह, ठीक है? Because that too much for you and that's not required for the exam. Now let's talk about rule number 5. Okay, now rule number 5, remember, is also based on non-idiomatic hearing. यहाँ पे भी हमें सुन के पकड़ना होगा कि जुमले में क्या सही है क्या गलत है. Rule number 5 का नाम है confusion between infinitive and gerund. अच्छा, ये लफ्ज सुने कभी, infinitive और gerund? पता है infinitive और gerund क्या होता है? Anyone? Have you guys heard these terms before, infinitive and gerund? Oh, okay, no problem. I was expecting that because A levels में, as I told you, hardcore grammar नहीं पढ़ाई जाती. We base a lot of our concepts on non-idiomatic hearing. That's the way I was also taught when I was doing my A levels back in the day. Now, as I told you, we have to digest grammatical rules, whether we like that or not. So what you need to understand is, सबसे पहली तो ये बात ज़हन में रखिएगा, जो मैंने आपको एक अगली सा एरो भी बना के यहाँ दिया हुआ है. Infinitives and gerunds are both types of verbs. Okay, so सबसे पहली बात, infinitives and gerunds are both types of verbs. ठीक है, तो ये verbs की किस्में हैं. अच्छा, now आमतौर पे जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई verb क्या होता है, तो बच्चे मुझे आमतौर पे एक जवाब देते हैं कि सर, a verb is a word that describes action. Okay, a word that describes action is a verb. I agree. However, if you're just saying a verb is a word that describes action, your definition is incomplete. The reason why it's incomplete is because action के साथ साथ हर verb, अंग्रेजी ज़बान का हर verb, action के साथ साथ tense भी बयान करता है. tense भी बयान करता है. verb हर वो लफ्ज है जो कि action के साथ साथ tense भी बयान करता है. प्रॉब्लम ये है कि ग्रामर की अक्सर किताबों में ये बात लिखी होती है कि verb is a word that describes action, और ये बात इसलिए लिखी होती है क्योंकि verbs आमतौर पे बच्चों से जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल में करवाए जाते हैं. मतलब ग्रेड 1, 2, 3 के अंदर बच्चों को वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, और उस वक्त उनका जहन शायद उतना पक्का नहीं होता कि इस तगड़े कॉन्सेप्ट को समझ सकें. लेकिन अब माशाल्लाह आप ए लेवल्स में हैं, आप आराम से ये बात समझ पाएंगे. इसलिए मैं जरा इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इनहांस कर रहा हूँ. आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्ब क्या होता है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि a verb is a word that describes action, साथ साथ ये भी कहिएगा कि it describes tense too. A verb is a word that describes action and tense. Let's look at the example which I've mentioned here. ये example देखिएगा जरा. अब बच्चे आमतौर पे अगर ये कहते हैं कि a verb is a word that describes action, तो सामने देखिएगा मैंने 4 अल्फाज लिखे हैं: eat, ate, eaten और eating. ये चारों words verbs हैं, आप जानते हैं. These are verbs and they are very commonly used words. हम रोजमर्रा की अंग्रेजी में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं: eat, ate, eaten और eating, right? अब सिलसिला ये है कि अगर मैं आपकी डेफिनेशन, मतलब आमतौर पे जो स्टूडेंट्स मुझे डेफिनेशन देते हैं वो ये है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, अगर मैं उसी डेफिनेशन के ऊपर मतलब डिपेंड करता रहूं, तो मुझे देखिए, मतलब इस जुमले को देख के बताएं, ईट, एट, ईटन और ईटिंग, इन चारों अल्फाज में एक्शन तो सेम है. खाना खाने की बात हो रही है ना, चारों अल्फाज में एक्शन तो सेम है. तो फिर इन चारों वर्ब्स के एक दूसरे से अलग होने की क्या वजह है?
अगर वर्ब एक्शन ही बयान करता है और इन चारों अल्फाज का एक्शन सेम है, तो फिर इन चारों वर्ब्स का एक दूसरे से अलग होने की क्या वजह है? बेटा इन चारों वर्ब्स का टेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ है, राइट? इवन दो दीज फोर वर्ब्स आर डिस्क्राइबिंग द सेम एक्शन, खाना खाने की बात हो रही है चारों अल्फाज में, लेकिन ये चारों वर्ब्स अलग हैं एक दूसरे से क्योंकि इन चारों में टेंस मुख्तलिफ है। इसी तरीके से मैं आपको मिलियंस ऑफ और एग्जाम्पल दे सकता हूं। लुक एट ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग। क्या हो रहा है? एक्शन तो सेम है, गाड़ी चलाने की बात हो रही है, लेकिन चारों में टेंस मुख्तलिफ है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी स्विम, स्वैम, स्वम, स्विमिंग, राइट, तो इन चारों अल्फाज में क्या हो रहा है? एक्शन तो सेम है, तैरने की बात हो रही है, लेकिन टेंस मुख्तलिफ है। तो आज से याद रखिएगा, वर्ब हर वो लफ्ज है जो कि एक्शन के साथ साथ टेंस भी बयान करता है। और ये बात बेटा जहन में रखिएगा, ये बात ना सिर्फ एक्शन वर्ब्स पे डिपेंड करती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब्स पे भी यही रूल अप्लाई करता है। हेल्पिंग वर्ब से भी ये रूल अप्लाई करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे थे रूल नंबर 4 में। मुझे एक बात बताइए, इज और वज में क्या फर्क है? प्रेजेंट और पास्ट टेंस। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं आर और वर में क्या फर्क है? प्रेजेंट और पास्ट टेंस। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं हैज और हैड में क्या फर्क है? प्रेजेंट और पास्ट टेंस। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है आपके सामने, राइट? और मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं कि हर वर्ब, भले वो एक्शन वर्ब हो, एक्शन वर्ब से मुराद बेटा एक ऐसा वर्ब जो कि एक्शन बयान करे, जैसे ये चार आपके सामने लिखे हुए, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। इसी तरीके से स्विम हो गया, इसी तरीके से ड्राइव हो गया। कोई भी एक्शन वर्ब हो उसकी भी बात हो रही है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स की भी बात हो रही है। हर वर्ब अंग्रेजी जबान का एक्शन के साथ साथ टेंस भी बयान करता है। तो अब नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट अ वर्ब इज and we have understood the fact that infinitives and gerunds are both types of verbs, ये बात वाजी हो गई कि इन्फिनेटिव भी एक्शन और टेंस बयान करता है और जेरेंड भी एक्शन और टेंस बयान करता है। ओके, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू देन? अब अगर दोनों के दोनों वर्ब्स की किस्में हैं और दोनों के दोनों एक्शन और टेंस बयान करते हैं, तो दोनों में फिर फर्क क्या है? बेटा इन्फिनेटिव वो वर्ब है जो कि टू के साथ आता है, जैसे कि यहां लिखा है मैंने आपकी आसानी के लिए, टू स्लीप, टू ईट, टू डांस, टू ड्राइव, टू स्टडी। जब भी कोई वर्ब टू के साथ आता है उसको इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। और जब भी कोई वर्ब आईएनजी के साथ एंड होता है, वर्ब आईएनजी के साथ एंड होता है, तो उसको जेरेंड वर्ब कहा जाता है। उसको जेरेंड वर्ब कहा जाता है। स्लीपिंग, ईटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, लाफिंग, टॉकिंग, व्हाटएवर। ओके, सो अगर हम देखें टू स्लीप और स्लीपिंग में व्हाट्स द डिफरेंस? द एक्शन इज द सेम, सोने की बात हो रही है, लेकिन टेंस अलग है इन दोनों का। यहां टू स्लीप हम परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं और स्लीपिंग के अंदर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, रिमेंबर the reason why we are getting so much in technical detail regarding verbs is because this rule is based on non-idiomatic hearing. Here you'll have to read a sentence and you'll have to see whether the verb sounds correct or not. It may be possible that you're given a gerund verb and that's not acceptable, तो आप उस gerund को infinitive में तब्दील कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि infinitive दिया हुआ सुनने में खटक रहा हो और आप उसको change करके gerund करें। So let's look at the sentence which is given here, and as I've told you, ये बड़ा एक important point है जो कि मैंने यहाँ लिखा है, practice is the only way you can make your non-idiomatic hearing better. Okay, so you have to spend more time with the language. Okay, and inshallah today after class I will even send you a couple of newspapers that I regularly want you to follow. वैसे अगर time ज़्यादा होता, मतलब if I knew you since 1, 2, 3, 4 years, I would have provided you a proper a roadmap of how to increase your reading speed as well as your vocabulary bank, etc. But now, given the fact that we have an exam standing in front of us in the next 3 months, 3.5 months max, I would recommend you to read the newspaper, because newspaper say you kill two birds with one stone. एक तो आपकी स्पीडिंग रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, साइमल्टेनियसली आपकी जनरल नॉलेज भी बड़ी होती है, which is essential. Your writing gets a lot of perspective
when you start reading the newspapers and when you know what's happening around you in the world. मतलब current affairs की मालूमात अगर हो तो आपकी राइटिंग में पर्सपेक्टिव आ जाता है. और याद रखिएगा ऐसे राइटिंग का भी एक ऑप्शनल सेक्शन है आपके SAT-1 एग्जाम में. तो देखें जुमला देखते हैं. Team officials heralded Cap Day as an attempt at attracting a large turnout of fans. Now, when you read this sentence, team officials heralded Cap Day as an attempt at attracting a large turnout of fans. There's a word which I've circled that sounds wrong, right? Attracting sounds wrong. It doesn't sound right. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं attracting is a gerund verb. मुझे इसको खटकने की वजह से मुझे ये सुनने में अजीब लग रहा है. It doesn't sound right. Non-idiomatic hearing मुझे बता रही है. तो मुझे at attracting की जगह यहाँ replace करके at attracting की जगह I should use what? To attract. I should use to attract. Team officials heralded Cap Day as an attempt to attract a large turnout of fans. तो टू अट्रैक्ट में इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि मैंने लफ्ज अटेम्प्ट बचपन से इस्तेमाल किया हुआ है और जब भी मैं लफ्ज अटेम्प्ट इस्तेमाल करता हूं उसके साथ मैं टू लगाता हूं. ये नॉन इडियोमैटिक हियरिंग है. अच्छा, नॉन इडियोमैटिक हियरिंग की खूबसूरत चीज ये है कि आपको शायद ये याद ना हो कि ये आपने कौन सी किताब में, कौन सी क्लास में, कहां पढ़ा था, कौन से टीचर ने आपको ये बात बताई थी. लेकिन नॉन इडियोमैटिक हियरिंग इज अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस मेमोरी. ये चीजें आपके जहन में ना, जो सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, जो मूवीज आप देखते हैं, जो ड्रामे आप देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के. एजुकेशन इज नॉट ओनली एक्वायर्ड इन क्लासरूम्स. यू नो, न्यूज चैनल्स के जरिए आप सीख सकते हैं, अखबारों के जरिए आप सीख सकते हैं, किताबों के जरिए, लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके, वेबसाइट्स पे, यू नो, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के सोर्सेज पे यू कैन लर्न. तो वो चीजें आपके जहन में बैठ जाती हैं और जब भी उसके अगेंस्ट कोई जुमला आपको नजर आता है, सुनने में आता है, तो वो खटकता है और सुनने में अजीब लग रहा होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ पे मैं एट अट्रैक्टिंग को चेंज करके टू अट्रैक्ट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इडियोमैटिक हियरिंग, बिकॉज मैंने जब भी लफ्ज अटेम्प्ट इस्तेमाल किया उसके साथ मैंने टू लगाया है. सही है. आई विल अटेम्प्ट टू कंप्लीट माई होमवर्क बिफोर मिडनाइट. I will attempt to meet you tomorrow. I will attempt to finish my work and give it to you, right? तो हमेशा क्या आ रहा है, लफ्ज attempt के साथ to आ रहा है और इस बात का यकीन जाने मैंने रट्टा नहीं लगाया. नॉन इडियोमैटिक हियरिंग होती ही ये है कि सुन के ही नेचुरली आपको फील होने लगता है कि क्या चीज सही होगी और क्या चीज गलत. Is this sentence making clear to each and every one of you? Look at the sentence, please. ये sentence clear है बेटा? Guys, come on, wake up. You need to be more responsive. Shabash. Is this sentence making sense to you? Okay, shabash. Okay, good, good, good. Wake up. Okay. Chalo, let's look at 3 sentences which are based on rule number 5. Remember, we're talking about non-idiomatic hearing and we have to listen for an error. पहला सवाल देखिएगा. Any parent would see the value to set a curfew for his or her child. Remember, we're identifying an error on the basis of non-idiomatic hearing. पहला सवाल देखिएगा. Anyone finds an error with the first question? गाइस, क्या गलत लग रहा है पहले सवाल में? जी जनीता, क्या करेंगे टू सेट की जगह? टू सेट की जगह क्या लिखेंगे? शाबाश, very good Janita. Offsetting. Now how do we know this? How do we know this? Because मैंने जब भी लफ्ज वैल्यू इस्तेमाल किया ना उसके साथ मैंने ऑफ लगाया है बचपन से. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन कहता हूं मैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स. या फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. पैसे की वैल्यू कम हो रही है. रियल वैल्यू ऑफ मनी जिसको कहा जाता है वो कम हो रही है बिकॉज महंगाई इतनी बढ़ रही है. पहले जो लाख रुपए में आप खरीद सकते थे आज आप लाख रुपए में नहीं खरीद सकते बिकॉज चीजों के दाम बढ़ रहे हैं. तो वैल्यू के साथ ऑफ आता है और यहाँ पे चूंकि वैल्यू के साथ टू लगा हुआ है, इट डजंट साउंड राइट.
So what am I doing? To set एक infinitive verb था जिसको मैंने convert करके offsetting किया, which is a gerund verb. And why am I doing that? Because it doesn't sound right. To set सुनने में खटक रहा है. So any parent would see the value of setting. Okay, offsetting a curfew for his or her child. अच्छा, I would like to mention something here. एक तो चीज होती है offsetting, OFFSETTING, ठीक है, ये अलग है. और एक होता है OF space setting, ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है. ये जो ऑफसेट होता है ना, इसका मतलब होता है कैंसिल आउट करना. जैसे आप में से जो बच्चे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप में से कोई बच्चा अकाउंटिंग पढ़ रहा है, तो हम लोग जब रिकंसाइल करते हैं दो बैलेंस शीट्स को, जब हम साथ एक दूसरे के मिलाते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ ऑफसेट कर रहे होते हैं, उसको कैंसिल आउट कर रहे होते हैं. आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जब ऑफसेट किया जाता है, तो इसका मतलब है बैलेंस आउट करना, ठीक है, कैंसिल आउट करना. तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा इस केस के अंदर. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, OF सेटिंग, ठीक है, वैल्यू सेटिंग की. कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब रुकावट है. जाहिर है बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है. बच्चों की अगर हर फरमाइश को पूरा करते चले जाएंगे तो वो फिर बिगड़ते चले जाएंगे ना. डिसिप्लिन सिखाना वालिदैन का काम है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे नो बेटर. Children are children. Not everything they're demanding is good for them, right? Okay, so let's look at the second sentence. Through this new ad campaign. अब याद रखिएगा ad की spelling में single D लिखा हुआ है, और single D इसलिए लिखा हुआ है because ADD is plus minus वाला ad, और A single D जो है ये advertisement का short form है, ठीक है. तो this is the short form of advertisement. Through this ad campaign, we hope for tripling our gross income by the end of the year. Come on, guys. क्या लग रहा है? शाबाश, C आंसर आ गया. उस्मान, why? जनीता, why? For tripling की जगह शाबाश, very good. Now you're making sense. Very good. To triple. Okay, माशाल्लाह, 2-3 बच्चे सही जवाब दे रहे हैं already. बाकी guys, why are you guys sleeping so far? Hiba, what's wrong with you? Saud, come on. Zaid, speak up बच्चे. You guys need to respond as well, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Hope to triple होगा. For tripling की जगह hope to triple our gross income by the end of the year. Okay. So the second sentence, the answer is C for Charlie. Again, what we're doing is we're converting from one form of the verb to another. We converted the gerund verb into an infinitive verb in this situation. उल्टा किया हमने. पहली situation में हमने infinitive to gerund किया था, अगले में हमने gerund to infinitive कर लिया. तीसरा sentence देखते हैं. The teachers union is eager to resolve the contractual disagreement with the school board. देखिएगा. अच्छा, टीचर्स यूनियन है. हाँ, यूनियन इज अ कलेक्टिव नाउन एंड यूनियन इज अ सिंगुलर. मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, ऑफ कोर्स इट्स अ कलेक्टिव नाउन, बट यूनियंस नहीं लिखा हुआ. तो एक ग्रुप है ना, तो वाहिद है, सिंगुलर है, तो इसलिए इज लिखा हुआ है. यहाँ आपको नजर आ रहा होगा इज, एंड दैट इज फाइन. याद रखिएगा, जो चीजें अंडरलाइन नहीं है वो करेक्ट होना जरूरी है. अब जुमला देखें, जरा गौर से देखें, नॉन इडियोमैटिक हियरिंग इस्तेमाल करें. Yes, the answer is no error. Absolutely, you're right. Because there is no error in the sentence. It's correct. The teachers union is eager to resolve. अब देखें, ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जुमलों में error को हमें identify करना on the basis of grammatical knowledge. But what you need to understand is that there is a probability, in fact, there's a very high chance that the sentences that you're given, not every sentence would have an error, right? So when you're skimming through the text, for example, if you have a passage having say 600 words, 600 words के अंदर हर sentence में गलती थोड़ी होगी. कुछ sentences में गलती होगी, कुछ में नहीं. तो non idiomatic hearing आप इस्तेमाल करेंगे. The teachers union is eager to resolve. यहाँ पे there is no error because eager के साथ to resolve ही आता है. Okay, so good job, Janita, Zaid, very good. In fact, Usman, each and every one of you accepted the fact that there was no error in this situation, and that is in fact the right answer. Okay, so remember, not every situation would have an error. कुछ situations ऐसी होती हैं जिसमें गलती
नहीं होती। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द लास्ट रूल बेस्ड ऑन नॉन इडियोमैटिक हियरिंग। जैसे मैंने आपको बताया था 4, 5 एंड 6 आर बेस्ड ऑन नॉन इडियोमैटिक हियरिंग। जरा 6 देखते हैं। 6 में लिखा है नॉन इडियोमैटिक प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब। ओके, अब जरा बात समझिएगा। अब प्रेपोजिशन, now I know this is getting a little bit too dry for you. I hope I'm trying my level best to make it as simple and as interactive as possible. लेकिन अफसोस के साथ कुछ चीजें हैं ड्राई, उसको हजम करना पड़ेंगी। देखिए, प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि दो नाउन्स के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर करता है। और याद रखिएगा, जो रूल्स नाउन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं वही रूल्स प्रोनाउंस पे भी अप्लाई करते हैं, बिकॉज प्रोनाउंस आर रिप्लेसमेंट्स ऑफ नाउन्स, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही को सिंगुलर ट्रीट कर रहा हूं तो मैं इसलिए ही को सिंगुलर ट्रीट कर रहा हूं बिकॉज ही जो है वो जैक का रिप्लेसमेंट है, और जैक सिंगुलर है तो ही भी सिंगुलर है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो रूल्स नाउन्स पे अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली वही रूल्स प्रोनाउंस पे भी अप्लाई करते हैं। नाउ व्हेन यू लुक इन नंबर 6, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉन इडियोमैटिक। सुन के पकड़ना है आपको गलती को। प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब। अब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनता है। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन बनता है और जुमला प्रेपोजिशन मांगता है। अब बात जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ऑन टाइम, अगर मैं कहूं बाय द टाइम, अगर मैं आपसे कहूं विद इन द टाइम, वाइस वर्सा मैं आपसे कहूं फॉर द टाइम, इसी तरीके से मैं कहूं इन टाइम, ये तमाम ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हर केस में ऑन टाइम नहीं लगाया जाता, हर केस में इन टाइम नहीं लगाया जाता, हर केस में बाय द टाइम नहीं लगाया जाता। जुमला प्रेपोजिशन मांगता है। आपको देखना है कि आपका जुमला कह क्या रहा है और उसके मुताबिक आपको एक प्रेपोजिशन चूज करना होगा, ठीक है? नाउ इफ यू लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, पॉल्स न्यू बॉर्न, पॉल का एक बच्चा पैदा हुआ है, पॉल्स न्यू बॉर्न इज ओवर ग्रोइंग हिज क्लोथिंग वेरी स्विफ्टली। अब इस सेंटेंस के अंदर यहां मुझे ये वर्ब नजर आ रहा है ग्रोइंग, और उससे पहले मुझे ये प्रेपोजिशन नजर आ रहा है। ये सुनने में मुझे खटक रहा है क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब उनके कपड़े उनको छोटे लगने लगते हैं, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं 1, 2, 3, 4 साल के, दे आर ग्रोइंग वेरी क्विकली माशाल्लाह। एंड उनके कपड़े आए दिन हर 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद दे स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ देयर क्लोथ्स। तो यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन वर्ब कॉम्बिनेशन है वो सुनने में मुझे अजीब लग रहा है। ओवर ग्रोइंग की जगह यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था गाइस? It should have been outgrowing. So I don't have a problem with the word growing. I have a problem with the word over, which I replaced and made out. जब कोई शख्स अपने कपड़ों से बाहर आ जाता है, इन द सेंस जब वो बड़ा हो जाता है, उसके कपड़े छोटे होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू इंक्रीज योर वेट, you get heavier, you build muscle, आप जिम जाना शुरू कर देते हो, आपका वजन बढ़ने लगता है, आपके कपड़े अगर आपको टाइट होने लगते हैं या छोटे पड़ने पड़ते हैं, तो हम उसको ओवर ग्रोइंग नहीं कहते, हम उसको आउट ग्रोइंग कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम न्यू बॉर्न बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि बड़ा हो रहा है, कपड़े उसको छोटे होते चले जा रहे हैं, तो वी विल हैव टू यूज outgrowing rather than overgrowing. अब हो क्या रहा है? This is a preposition verb combination. This is a preposition verb combination, and remember, you would only be able to identify this if you have a command over the language. Let's look at our second sentence. Second sentence में लिखा है city council members frequently meet until the early morning hours in order to work in their stalemates. Now I want someone to explain this sentence to me. Come on, आज आप लोग बहुत सो रहे हैं। अब मुझे कोई बच्चा जरा अनम्यूट करके ये जुमला समझा दे प्लीज। who should I pick? राफे, give it a try। राफे, ओके सर। जी बेटा बताइए। जुमले का बस मतलब ही समझा दें।
जैद ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जैद बेटा अनम्यूट करके जरा जुमला मुझे समझा दें। हम गलती के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आप मुझे ये समझा दें कि ये जो जुमला लिखा है इसका क्या मतलब है। कि जो सिटी काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो अपने काम के लिए सुबह सवेरे मिलते हैं। अच्छा, सुबह सवेरे मिलते हैं या सुबह तक मिलते रहते हैं? मतलब मीट अंटिल लिखा है ना। हाँ, सुबह तक मिलते हैं। ओके, अच्छा किस लिए मिलते हैं सिटी काउंसिल मेंबर्स, दोबारा बताइएगा। काम के लिए। अच्छा, ये मुझे जरा बताओ जैद कि ये लफ्ज का क्या मतलब है, स्टेलमेट्स क्या होते हैं? ये तो गूगल करना पड़ेगा सर। चलो सही है। नहीं देखो, अच्छा आमतौर पे जब बच्चे को मैं ये सेंटेंस देता हूं ना, तो बच्चे आमतौर पे कहते हैं सर ये आपने टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, ये दरअसल लफ्ज होगा स्टेटमेंट, और आपने ना स्टेटमेंट की जगह ना गलती से स्टेलमेट्स लिख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। स्टेलमेट इज अ वर्ड। अच्छा मजेदार बात है, आप में से अगर कोई चेस खेलता है, अगर आप में से कोई चेस खेलता है तो आप लोगों ने लफ्ज चेकमेट सुना होगा। चेकमेट। उसी तरीके से चेस में एक सिचुएशन होती है जिसको स्टेलमेट कहा जाता है। ठीक है, अब भी जरा बात समझिएगा। चेकमेट इज अ सिचुएशन बिकॉज सी चेस इज अ इट्स लाइक अ बैटल बिटवीन टू साइड्स, राइट? व्हाइट वर्सेस ब्लैक की एक जंग चल रही होती है, उसमें स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होती है, हर पीस के अपने अपने मूव्स होते हैं और लिमिटेड स्पेस है। 8x8 का मैट्रिक्स होता है, तो 64 खाने हैं जिनमें आप अपने पीसेस मूव कर सकते हैं। तो चेकमेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे मैं व्हाइट हूं, आप ब्लैक हैं, तो मैंने आपके किंग को फंसा दिया। अब आपके किंग के पास कोई लीगल मूव पॉसिबल नहीं है, तो आप चेकमेट हो गए, मतलब मैं जीत गया आप हार गए। ठीक है, इसको कहते हैं चेकमेट। स्टेलमेट क्या होता है? स्टेलमेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मैंने बारी चली, फिर आपकी बारी हुई, फिर मेरी, आपकी, मेरी, आपकी बारी, चलती रही। एक वक्त ऐसा आया कि आपके भी तमाम पीसेस फंस चुके हैं और मेरे भी तमाम पीसेस फंस चुके हैं, हम दोनों के कोई पीसेस हिल नहीं सकते अपनी जगह से, तो उसको हम स्टेलमेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट्स अ ड्रॉ, इट्स अ फंसी हुई सूरत हाल, और अगर हमें मजीद खेलना है तो हमें गेम को रिफ्रेश करना पड़ेगा। कैंडी क्रश अगर आपने खेला हो, तो कैंडी क्रश के अंदर जब रो नहीं बन रही होती तो वो ऑटोमेटिकली रीशफल हो जाता है, आपने देखा होगा। वो रीशफल इसलिए होता है बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू प्ले फर्दर। या टिक टैक टू जब खेलते हैं, टिक टैक टू जब खेलते हैं उसके अंदर एक्सेस एंड जीरोस बनाते हैं, वो वाला जो गेम है उसको उर्दू में आई थिंक काटम कुटी कहते हैं, समथिंग दैट। तो टिक टैक टू जब खेलते हैं तो उसके अंदर जब रो नहीं बन रही होती ना, तो हम ऐसे डी बना के आगे बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि ड्रॉ होता है तो आगे बढ़ जाना चाहिए। उस सिचुएशन को स्टेलमेट कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट स्टेलमेट मींस इज एक फंसी हुई सूरत हाल, एक ऐसी सिचुएशन जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो, उसको स्टेलमेट कहा जाता है। तो जुमला बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि जो सिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, मतलब शहर की हुकूमत के जो बंदे होते हैं, याद रखिएगा दे आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और फिर एक सिटी गवर्नमेंट होती है जिसको म्यूनिसिपल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आपने इधर उधर कराची में बोर्ड्स देखे होंगे, CDG के, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, उसकी बात हो रही है। तो सिटी काउंसिल मेंबर्स फ्रीक्वेंटली, अक्सर, मीट अंटिल द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, सुबह तक बैठे रहते हैं, मतलब पूरा दिन पूरी रात, अगले दिन सुबह हो जाती है। दे स्टे इन देयर ऑफिस इन ऑर्डर टू वर्क इन देयर स्टेलमेट्स। अब इस मतलब को जहन में रखते हुए you need to identify if there is a preposition that is wrong in this sentence. तो अब जरा कोशिश करें भाई, गूगल वाला काम मैंने आपका कर दिया है, अब जरा मुझे बताएं कोई ऐसा preposition है जो कि गलत लग रहा है आपको। Anyone? इन गलत लग रहा है वर्क के बाद? हिबा, कौन सा वाला इन गलत लग रहा है? जो वर्क के बाद लिखा हुआ है वो गलत लग रहा है? Yes, okay, fine. So how do you think we should fix the sentence? क्या लग रहा है इनकी जगह क्या आना चाहिए? एक फंसे हुए मसले को हल करना चाह रहे हैं ना, पूरी रात बैठे रहते हैं, अगले दिन सुबह हो जाती है, दे स्टे इन देयर ऑफिस टू सॉल्व देयर फंसे हुए मसले, स्टक सिचुएशंस। एब्सोल्युटली, यस, यू आर राइट हिबा, गुड जॉब। यस, वर्क इन की जगह इट शुड बी वर्क आउट। ब्यूटिफुल, बिकॉज वर्क आउट मीन्स टू सॉल्व। अच्छा मजेदार बात जरा देखिएगा, अगर आप में से कोई ऐसा
स्टूडेंट हो जो कि सोच रहा हो कि सर वर्क इन की जगह लिखा होना चाहिए था वर्क ऑन, तो ट्रस्ट मी, वर्क ऑन इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्क ऑन एंड वर्क आउट. ये भी जरा एक फाइन डिफरेंस है, इसको जरा समझिएगा. वर्क ऑन का मतलब है किसी मसले पे काम करना, एंड वर्क आउट का मतलब है किसी मसले को हल करना. तो वर्क ऑन, जैसे मिसाल अगर मैं आपको कहूं बेटा अपनी वोकैबुलरी पे काम करें, आज मैं आपसे कहता हूं बेटा अपनी वोकैबुलरी पे काम करें. अब आपको पता है ये काम ऐसा नहीं है जो कि हफ्ते में हो जाए, कई साल लगते हैं. ठीक है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश for the past I don't know 11-12 years of my life, and even now sometimes I'm reading newspapers, magazine articles idhar udhar, and I see words which are a little unique to me, so I have to refer to the dictionary. Okay, so it's a lifelong process. एक हफ्ते बाद अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई मैंने आपसे कहा था अपनी वोकैबुलरी पे काम करें, आपने काम कर लिया, हो गया, तो आप कहेंगे सर आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, क्योंकि काम चल रहा है. ठीक है, लेकिन वर्कआउट जैसे मैंने आपको बताया, स्टेलमेट इज अ फंसी हुई सिचुएशन, इट्स अ स्टक सिचुएशन. तो उस सिचुएशन के ऊपर वर्क ऑन करने मतलब पूरी रात काम करने के लिए नहीं बैठे रहते, ये उसको हल करने के लिए बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से इट हैज टू बी वर्क आउट रादर देन वर्क ऑन एंड रादर देन वर्क इन. ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने मुझे कहा था कि सर जब तक स्टेलमेट का मतलब नहीं पता होगा, जब तक गूगल नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस नहीं समझ में आ सकता. I would like to stress here upon the importance of vocabulary. Now, you guys need to understand this. See, vocabulary is super important when it comes to not only the reading section, but also the writing section. Both sections are vocabulary intensive. Okay? Of course, if you do not understand the meaning of sentences, how are you going to identify the error? Forget about correcting the error. Correction तो बहुत दूर की बात है, आपको जब जुमला समझ में नहीं आ रहा तो आप तो एरर को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, फिक्स तो करना बहुत दूर की बात है. जैसे इस सिचुएशन में स्टेलमेट का मतलब नहीं पता तो आप पैरालाइज्ड महसूस करेंगे, यू विल फील हैंडीकैप्ड. ओके, एंड इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट पैरालिसिस, द ओनली वे यू कैन डू दैट इज बाय मेमोराइजिंग वोकैबुलरी, एंड इंशाल्लाह फॉर दैट आई विल गिव यू 3 word lists, guys. Okay, you will have to digest words on a weekly basis, and inshallah starting the 15th of September I would start conducting tests on a weekly basis. होगा ये कि मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा क्लास टाइम से पहले सैटरडे के दिन. ठीक है, तो 12 बजे आपकी क्लास होती है, समझ ले 11:15 से 12 के दरमियान 15 मिनट का आपके एक वोकैबुलरी टेस्ट हुआ करेगा 15 सितंबर के बाद. मैं अभी आपको 10 दिन दे रहा हूं इंशाल्लाह. आज कल में आपको मैं एक वोकैबुलरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो वर्ड लिस्ट आप याद करना शुरू करेंगे. ऑन अ वीकली बेसिस यू विल हैव टू मेमोराइज 75 वर्ड्स on a weekly basis. Okay, and that is the way, that's the only way you will be able to memorize around 2000 words. Guys, you have to memorize 2000 words. घबराने की बात नहीं है. ठीक है, जैसे हमारे वजीर आजम कहते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है. आपको वीकली बेसिस पे अपने कोटे को डिवाइड करना होगा. अब अगर आप 1-2 महीने तक बिल्कुल ही वोकैबुलरी को ना देखें और पेपर से एक हफ्ता पहले आप शुरू करें तो जाहिर है आपसे नहीं होगा. वीकली बेसिस पे 75 वर्ड्स याद करेंगे तो बेटा एक दिन के 10 अल्फाज बनते हैं, 7 days in a week, right? So around 10 words per day बनेगा, which is not a lot. Trust me, 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाएगा अगर आप फोकस कर रहे हो. और मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी अभी बताने जा रहा हूँ. I'll tell you a couple of ways in which you can enhance your vocabulary skills. Okay, so let's just talk about this. How to retain vocabulary, super important. ठीक है, ये जो 6 points मैंने लिखे हैं ये बड़े काम के 6 पॉइंट्स हैं, इनको जरा समझिएगा. सबसे पहला तो तरीका है स्टैंडर्ड तरीका रट्टा लगाने का, उसको रोड लर्निंग कहते हैं. अच्छा, मैं जानता हूं कि आप ए लेवल स्टूडेंट्स हैं तो आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को रट्टा लगाने की आदत नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है. कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है. तो अगर रट्टा आपका इफ इट्स नॉट योर पीस ऑफ केक, देयर आर अदर वेज इन व्हिच यू कैन मेमोराइज वोकैबुलरी एज वेल. वन ऑफ देम इज ऑडियो सपोर्ट. ऑडियो सपोर्ट क्या होती है बेटा? आपको जो वर्ड लिस्ट में दूंगा उसमें वर्ड्स होंगे, उसमें मीनिंग्स होंगी, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी दिया हुआ होगा कि भाई ये लफ्ज नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है. ठीक है, सेंटेंसेस भी दिए हुए होंगे. आप अपनी कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए, आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज स्मार्टफोन्स, तो आप अपनी कन्वीनियंस को मद्देनजर रखते हुए वॉइस नोट पे, मतलब अपने जो भी वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है जो भी आपके फोन में, उसके ऊपर अपनी वर्ड लिस्ट को 10-10 वर्ड्स करके रिकॉर्ड करें अपनी अल्फाज में, अपनी आवाज में. अगर अपनी आवाज पसंद नहीं है, किसी भाई बहन की आवाज में रिकॉर्ड करवा लो. ठीक है, तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करें बिल्कुल सुकून से. वर्ड नंबर 1 आपने लफ्ज पढ़ा, मीनिंग आपने उसकी मीनिंग पढ़ी,
और फिर आपने इस तरीके से जब 10 वर्ड्स रिकॉर्ड कर लिए तो यकीन जाने 10 वर्ड्स की ऑडियो क्लिप मुश्किल से कोई 2 मिनट की होगी। उस 2 मिनट की ऑडियो क्लिप को गाने की तरह सुनते रहे। कीप ऑन लिसनिंग टू इट व्हाइल यू आर डूइंग समथिंग अनप्रोडक्टिव, याद रखिएगा। And how do I define something unproductive? Beta, I define something unproductive as something that would not come on your CV. कोई चीज अगर आपकी सीवी पे नहीं आ रही तो अनप्रोडक्टिव है। मिसाल, आप घर में प्याज काट रहे हैं, आप घर में इधर से उधर चीजें लेके जा रहे हैं, घर में किसी के लिए चाय बना रहे हैं किचन में खड़े हुए, ठीक है, कोई भी चीज अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं, कानों में वो ऑडियो लगाएं और उसको सुनते रहे, रिपीट करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा बेटा, मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं फिर रिपीट कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था, ऑडियो सपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप यकीन जाने, इट्स वेरी बेनिफिशियल। ओके, I'll give you an example of how I used audio support. When you're becoming a citizen of another country, you have to take a test. So in the year 2015, I became eligible to become a Canadian citizen. I had to memorize a book of around 200 pages. सिटीजनशिप का एक टेस्ट होता है जिसमें एक किताब पढ़नी होती है। वो कंट्री की पॉलिटिक्स के हवाले से किताब होती है, कंट्री की ज्योग्राफी से रिलेटेड किताब होती है, कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड होती है। तो वो किताब पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट से 1 हफ्ता पहले पता चला था कि ये, बल्कि 1 हफ्ता भी नहीं था, शायद 3-4 दिन थे जो पता चला था। तो खूबसूरत चीज ये थी कि कैनेडियन हुकूमत ना उसकी एक ऑडियो लिंक भेजती है, वो मैंने अपने आईपॉड पे स्टोर किया, और आईपॉड पे मैं आई केप्ट ऑन लिसनिंग टू इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यकीन जाने इट वाज वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, बहुत फायदा होता है। तो आप याद रखिएगा, गाने की तरह जब सुनेंगे, अच्छा ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है स्किल। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको सुन के गाने याद हो जाते हैं, मूवी के डायलॉग्स याद हो जाते हैं, किताबें शायद याद नहीं होती लेकिन गाने याद हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑडियो सपोर्ट बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ट्राई इट। इसके अलावा बेटा एक और तरीका है फ्लैश कार्ड्स का। फ्लैश कार्ड्स, आई एम श्योर आप ए लेवल्स में हैं, आपने सुना होगा फ्लैश कार्ड्स के बारे में। अच्छा, बाजार में ना फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं बने बनाए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फ्लैश कार्ड्स का तरीका अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो प्लीज फ्लैश कार्ड्स खुद बनाएं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है जो कि लिख के याद करने के आदी है। कुछ बच्चे मेरे पास हमेशा होते हैं जो कि कहते हैं कि सर मैं ना लिख के याद करता हूँ या मैं लिख के याद करती हूँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा आपके लिए फ्लैश कार्ड से बेहतर कोई तरीका नहीं है, बिकॉज उसमें आप क्या करेंगे, आप एक चार्ट पेपर खरीदिए बाजार से, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी शॉप से आप एक चार्ट पेपर लें। उस चार्ट पेपर को आप रेक्टेंगुलर पीसेस में काट लें, 3 इंचेस बाय 1 इंच या 3 इंचेस बाय 2 इंच। ठीक है, इस साइज के आप रेक्टेंगुलर पीसेस काटें। हर रेक्टेंगुलर पीस के ऊपर आप एक तरफ एक वर्ड लिखें, उसके ऑपोजिट साइड पे, मतलब उसकी बैक साइड पे आप मीनिंग लिखें। ठीक है, और जैसे 50 वर्ड्स होंगे तो उसकी 50 कार्ड्स बन जाएंगे, और उसको ताश के पत्तों की तरह अपनी पॉकेट में लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इट्स हैंडी। इंशाल्लाह जो आपको मैं वर्ड लिस्ट दूंगा वो ये तो पीडीएफ वर्जन में होगी, आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। प्रॉब्लम उसके साथ ये होगी बेटा कि इट इज नॉट सो पोर्टेबल, मतलब वो वर्ड लिस्ट हाथ में कैरी करना इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। इसके एवज अगर आप कहीं जैसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, आपकी कहीं मीटिंग है,
आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ रहा है, या अगर आप ड्राइवर के साथ कहीं गाड़ी में घूम रहे हैं और आप ट्रैफिक में फंसे हुए, यू कैन टेक आउट द फ्लैश कार्ड्स एंड यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग. Guys, trust me, some of you may be smirking right now while listening to this, but it's super important. You need to understand how important utilizing every minute of the day is. ये छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के जो इंटरवल्स होते हैं ना, इन्हीं को अगर आप मास्टर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो सकेगी. ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स बनाए, दैट इज ऑल्सो अ वे. इसके अलावा एक और तरीका है बेटा, मेंटल पिक्चर्स का. अच्छा, ये मेंटल पिक्चर्स क्या होते हैं, ये मैं आमतौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ. if I find a unique word, एक मुख्तलिफ लफ्ज मुझे सुनने को मिलता है, मैं उसका मीनिंग देखता हूँ और फिर मैं उस मीनिंग को एक जानने वाले से, एक कार्टून कैरेक्टर से, एक मूवी स्टार से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से एसोसिएट कर देता हूँ. जैसे एक लफ्ज है ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस का मतलब है सोशिएबल, पार्टी एनिमल. मेरा एक दोस्त है जिसको पार्टी का इतना शौक है कि मैं आपको बता नहीं सकता. तो मैं जब भी लफ्ज ग्रिगेरियस सुनता हूं मेरे जहन में उसका नाम आ जाता है. इट हेल्प्स अ लॉट. इसी तरीके से कोई भी लफ्ज है, यू नो, लाइक एक लफ्ज है बट्रेस, BUTTRESS, बट्रेस, जिसका मतलब है सहारा, सपोर्ट. तो मेरे जहन में दीवारें आ जाती है, लाइक पिलर, फाउंडेशन. ठीक है, ये वो चीजें जो कि सपोर्ट करती हैं एक इमारत को. ठीक है, तो हमेशा ये भी एक तरीका है, बड़ा फायदेमंद तरीका है. इनफैक्ट मेंटल पिक्चर जब आप बनाते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी होती है आपकी. मतलब रट्टा वगैरह लगाएंगे तो शायद कुछ महीने बाद आप भूल जाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप इतनी मेहनत करके 2000 अल्फाज याद कर रहे हैं तो क्यों ना आप लंबे अरसे के लिए याद कर लें, ना कि 4-5 महीने बाद भूल जाए. जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए याद करें. अच्छा, एक है कॉम्बिनेशन मेथड, जिसमें मैंने जैसे आपको पर वीक 75 वर्ड्स दिए, तो आपने क्या किया, 15 वर्ड्स ऑडियो के जरिए याद कर लिए, 15 वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स के जरिए याद कर लिए, बाकी आपने अल्फाज मेंटल पिक्चर्स के जरिए याद कर लिए. तो कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर आप ये तरीके कंबाइन कर रहे हैं. एंड याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इज कांस्टेंट रिवीजन. एक दफा याद करके अगर आप 15-20 दिन तक उन वर्ड्स को दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे तो यकीनन आपको वो वर्ड्स याद नहीं होंगे. इनफैक्ट एक फ्रेज है कि इफ यू मेमोराइज समथिंग टुडे एंड यू रिमेंबर इट 90 days later, then you've memorized it for life. मतलब अगर आज आप कोई याद करते हैं चीज और आपको 5 सितंबर 5 दिसंबर को भी वो चीज याद है इंशाल्लाह, तो आपने सारी जिंदगी के लिए उसको याद कर लिया. बट दैट डिमांड्स कांस्टेंट रिवीजन. ओके, दीज आर मल्टीपल वेज. इसके अलावा आप अपने भी सब्जेक्टिव तरीके निकाल सकते हैं वोकैबुलरी याद करने के, बट इन माय ओपिनियन दीज आर दोज वेज व्हिच यूजुअली हेल्प स्टूडेंट्स टू memorize vocabulary, and I would urge you to bank on these ways. Inshallah, we'll talk about vocabulary in detail in our next session. But अभी आपकी एक मैथ्स की क्लास है गालिबन, उसके बाद मैं सर इमरान से कहता हूँ आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे. 15 से उसमें 25 सवाल हैं. 15 मिनट में वो टेस्ट मुकम्मल कीजिएगा और प्लीज मुझे उसकी तस्वीरें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा. इंशाल्लाह I'll give you feedback by tonight. Okay, I have a couple of other live classes for now, but inshallah we'll speak tonight. I'll send you my feedback. Okay, chalo, thank you so much guys for staying online, and I hope we whatever we covered was clear for you. इसके हवाले से और भी रिवीजन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हम देते रहेंगे और वोकैबुलरी इंशाल्लाह मैं आपको एक आध दिन में प्रोवाइड करूंगा. 15 सितंबर ऑनवर्ड्स आपका वोकैबुलरी का टेस्ट हुआ करेगा हर हफ्ते. ओके, so if you have any questions you can shoot them at me, otherwise I'm done for today. Clear? Guys? Yes, sir. Okay, perfect. So I'll take that as a no. Thank you so much, guys. I'll see you soon, inshallah. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आवाज़ आ रही है आप लोग को और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? ठीक है। मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा भाई। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि आप तमाम लोग पिछली क्लास में मौजूद थे? मैं ज़रा नाम लेकर पूछ रहा हूँ, मुझे कंफर्म कर दें। अब्दुल राफे शेख आप थे लास्ट क्लास में? हानिया आप, हिबा, जनीता, सऊद, उस्मान, यासिर, जैद, ठीक है। जैद का नहीं है, अच्छा आ गया। ठीक है बेटा, सही ज़बरदस्त। अच्छा हमने लास्ट जो डिस्कशन हमारा हुआ था उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेंट्स के हवाले से कुछ बातें, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ग्रेडियंट, स्लोप, इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो नहीं, ग्रेडियंट और स्लोप के लिहाज से कुछ बातों को डिस्कस किया था। ये हमारा आखिरी डिस्कशन हुआ था। अच्छा इसमें एक बात और थी, वो रह गई कि अगर हम याद रख लें कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये होता है 0 और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस ये सिंबल होता है इन्फिनिटी। ये देख लें भाई एक नज़र, यहाँ तक हम पहुँचे थे, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें जो है वो सही भाई, यहाँ तक सब ओके है? मैं आगे बढ़ूँ? अभी किसने ज्वाइन किया है? अच्छा अनुषा आप भी थी लास्ट क्लास में? ठीक है। चलिए फिर जो है वो मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक सब पहुँच ही गए हैं। अब हम एक डिस्कशन के अंदर कुछ नए अल्फाज को शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ करने वाला हूँ मैं, मुझे क्योंकि अगली कुछ बातें बतानी हैं, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर पैरेलल लाइंस। अमूमन लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि ऐसी लाइंस जो कि आपस में मिल ना रही हों उनको पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, ऐसी लाइंस जो कि आपस में मिल ना रही हों उनको पैरेलल कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, ये पेज,
अब जो भी डेफिनेशन होती है ना, हमेशा डेफिनेशन एक ऐसी जनरल फ्रेज होता है जो कि स्पेसिफिक बन जाता है, यानी कि मतलब वो हर हाल में एप्लीकेबल होता है। अब जो डेफिनेशन मैंने आपको कई बार ऐसी लाइन जो कि मिल ना रही हो वो पैरेलल कहलाती हैं। तो और से देखिएगा अभी अपने सामने ना, ये आपका पेज है जो मैंने रेड बॉक्स बनाया है, आपकी बुक रजिस्टर का पेज है। ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक मिनट, इसको क्या हो गया, ये आपका पेज है और इस पेज पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी ग्रीन, ठीक है, और अब मैंने जो है ना वो कोई और सी लाइन ड्रॉ करना शुरू की, ये जैसे ये ड्रॉ कर। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई क्या ये आपस में मिल रही हैं? सॉरी बेटा, ये कुछ एक अब आप कहते हैं कि नहीं आपस में मिल तो नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये कहीं आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाए, तो लिहाजा ये पैरेलल नहीं है। लेकिन मैं फिर इस बात पर आ गया कि भाई डेफिनेशन तो कहती है कि जो लाइंस मिल ना रही हो पैरेलल है, तो इस पेज की हद तक तो ये मिल नहीं रही ना, तो इस पेज की हद तक तो ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये जो रेड बनाया हुआ है मैंने बेटा, ये एक आपका पेज है, ये दो अलग अलग लाइंस है। मैंने आपसे पूछा ये पैरेलल है या नहीं, आपने सोचा कि भाई पैरेलल वैसे तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिल ही नहीं रही, लेकिन कहीं आगे जाके मिल जाएंगी इसलिए पैरेलल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है डेफिनेशन के अल्फाज हमारे लिए इनकम्प्लीट हो गए कि वो हर हाल में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए हम पैरेलल लाइंस को यूं डिफाइन नहीं करते, हम पैरेलल लाइंस को डिफाइन अलग तरह से करते हैं। ये देखिए, क्योंकि अब एक और भी मसला आएगा, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, ऐसी लाइंस, अल्फाज को सुनते रहिएगा, हाँ। इनके दरमियान डिस्टेंस, सुनिएगा, इनके दरमियान डिस्टेंस अगर क्या रहे, कांस्टेंट, ये देखिए मैंने दो लाइंस ड्रॉ की और सोचा कि इनके दरमियान डिस्टेंस कोई भी वैल्यू है और वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, और वो डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रहता है तो ये लाइंस पैरेलल कहलाएंगी। अच्छा, इसी तरह ये भी देखें, इस बात को भी समझिएगा। एक लाइन ये, अच्छा मैंने इसको ठीक क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट देना है। ये भी दो लाइन, ठीक है, ये दोनों का केस क्या है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, इन दोनों केसेस में डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। इन दोनों केसेस में इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट अगर रहेगा तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल की एग्जांपल हैं, और ये देखें ये उस डेफिनेशन पे को नेगेट कर रही हैं। ये दोनों केसेस पैरेलल लाइंस के हैं। जबकि आपने तो क्या सुना था कि भाई पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जो कि आपस में मीट ना करें वो पैरेलल, मगर ये तो मीट कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब है जो पैरेलल लाइंस का हम मतलब सुनते आए हैं वो उसकी असल
सही बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त जो आप पढ़ रहे होते हैं, जो आपका आईक्यू लेवल होता है, उसके लिहाज से वो जुमला इसलिए बताया जाता है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। मगर अब आपके सामने आ रहा है कि नहीं यार, ये तो बात ही अलग है। यहाँ डिस्टेंस जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ डिस्टेंस क्या है, 0। ठीक है, ये कहलाएंगी पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस, और इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, या इनको ओवरलैपिंग लाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो पैरेलल डिस्टिंक्ट लाइंस डिस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि ये अलग अलग विजिबल है। और ये कोइंसिडेंट क्यों है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक हैं और ये अलग अलग विजिबल भी नहीं होंगी। यानी कि मैंने आपको यूं तो दिखा दिया इसको थोड़ा सा थिक करके कि आपको विजिबल हो जाए, वरना अगर मैं दोनों को लाइंस को सिर्फ बारीक सा ही ड्रॉ करता तो यकीनन फिर आपको वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि दो हैं या एक है। ठीक है, अब सर एक सवाल है, जी जी जी, ये डिस्टेंस इज नॉट इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? कि इन दोनों लाइंस के दरमियान आपस में 0 डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कोई, ये इस चीज को नोट कीजिएगा, ये कुछ ना कुछ हो है, कोई वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ कुछ होगा, 1 माइक्रोमीटर होगा, कोई डिस्टेंस होगा। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, ये एक के ऊपर एक लाई कर रही है, ये मतलब है इसका। लेकिन थ्रू आउट इनके दरमियान डिस्टेंस 0 ही रह रहा है, यानी कि डिस्टेंस 0 है दोनों के दरमियान, आपस में ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो थ्रू आउट इनके सफ़र में डिस्टेंस 0 है, और इनके मामले में डिस्टेंस 0 नहीं है। लेकिन इन दोनों सूरतों में डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि 0 है तो 0 ही है, और 0 नहीं है तो जो भी वैल्यू है वो मुस्तकिल वही है। या मैं ठीक है सर, आपके थैंक लिए यू। यूं कर देता हूं कि इस बात को ना और बेहतर कर देता हूं ताकि कोई इसमें एम्बिग्विटी ना आए। यहाँ पे ना ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़े। अगर दो लाइंस पैरेलल हों, जैसे कि, बल्कि मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और मैं ना इनके
ऊपर ये एक एरो भी मार्क कर देता हूँ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी अच्छा ये जो एरो है ये अमूमन डायग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहा होता है लाइंस का पैरेलल होना, यानी कि सेम डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2, ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये पैरेलल को डिनोट करता है। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के मायने ये हैं कि उनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल हो, उस सूरत में M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होगा। अगर अच्छा ये M1 और M2 किसको डिनोट कर रहे हैं, स्लोप या ग्रेडियंट को। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप या ग्रेडियंट बराबर होंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप और दोनों के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर हो। स्लोप मतलब ग्रेडियंट। इसको भी कर ले नोट। अब इसका क्या इस्तेमाल है वो भी देखते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब अगली बात है x एंड y इंटरसेप्ट्स। ये क्या होते हैं भाई? फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई एक्सिस है और एक ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। इस पॉइंट पे जहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और अगर मैं सोचूं कि इधर क्या केस है, तो इधर बेसिकली इस पॉइंट पर y क्या होगा, 0, और x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उस वैल्यू को मैं कह रहा हूँ a, और इसी तरह यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जिसको हम b कह रहे हैं। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो a है इसको कहा जाता है x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट इज व्हाट? बाय डेफिनेशन x intercept is value of x when y is 0। और ये जो आपको b दिख रहा है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट, और ये क्या है भाई? ये है वैल्यू ऑफ y
व्हेन x इज 0। ठीक है, y की वो वैल्यू जब x 0 हो उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, और x की वो वैल्यू जब y 0 हो उसको कहा जाता है x इंटरसेप्ट। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक इक्वेशन हो एक लाइन की, जैसे कि ये लिखी हुई है, और कोई हमें कह दे कि भाई x और y इंटरसेप्ट मालूम करें। फाइंड x y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। अब जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो देखें क्या आएगा यहाँ पर, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। 3x इक्वल्स टू 6 और x आ गया 2 के बराबर। दिस वैल्यू ऑफ x इज obtained by putting y equals to 0. It means that it is value of x when y is 0. तो उस हाल में हम इसको क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे a लिखकर, वेयर a इज x इंटरसेप्ट। और फिर इसी तरीके से y इंटरसेप्ट के लिए भाई हम क्या करेंगे, x0 पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू को मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 6, y आ गया 3 के बराबर। फिर लेकिन हम यहाँ बॉक्स नहीं बनाएंगे, हम अगली लाइन में लिखेंगे y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू, ये हमने x y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब इस पूरी बात को अपने पास नोट कर लें, कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो पूछ लें। ये टर्मिनोलॉजीज हमने जो है ना वो ज़रा आइडेंटिफाई करनी कि किसको क्या कहते हैं। पूछ लें, कोई बात जहन में आ रही है। कर लें, नोट कर लें। कोई बात पूछिए तो पूछ लीजिए भाई।
आगे बढ़ जाए भाई, चलो ठीक है। अच्छा, अब अगली बात है भाई, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब एक लाइन की इक्वेशन को फॉर्म करने के ना क्या क्या रास्ते हैं, इस बात को जरा समझिएगा। एक है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ये क्या है भाई, ये मैं जरा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। m is equal to y minus y1 over x minus x1। और स्लोप जो है ना वो है m। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और आपको ये स्लोप और पॉइंट दिए हुए हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको यूज कर भी लें, बल्कि चलिए शो भी कर देता हूँ ना, साथ साथ इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। और हमें डेटा में क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 2/3 और पॉइंट दिया हुआ है 5, -2। अब देखें सवाल में क्या लिखा हुआ होगा। सवाल में लिखा हुआ होगा, जुमले को सुनिएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 2/3 एंड पासिंग थ्रू 5, -2, ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, m, ये वैल्यू m हो जाएगी, ये m हो गया, और ये क्या हो गया, x1 y1। तो क्या आ जाएगा 2/3 y -2। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, या बस करिए। देख लें जो वर्किंग हुई है, ये पॉइंट स्लोप फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ। फिर इक्वेशन निकालने के लिए एक अगला फार्मूला लिख रहा हूँ जिसका नाम है टू पॉइंट फार्मूला। और इसमें क्या इस्तेमाल होगा भाई, 2 पॉइंट दिए हुए, x1 y1 और x2 y2। और फॉर्मूला है ये y2 -y1 -
ये 2 पॉइंट फार्मूला कहलाता है। इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। आपको डाटा में 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल कहा गया भाई ये एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लें। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो y2 माइनस y1 ये बन गया 3/-2, और फिर अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब टर्म्स को एक लाइन में ले आए, एक तरफ ज़ीरो रह जाए। ये सिंप्लीफिकेशन खुद ही कर लें, इसको भी कर लें नोट, देख लें कोई बात क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लें। कभी के बार भाई ये जो सेट के या बी कैट के टॉपिक्स हैं जो आपने पहले सुने हुए और पढ़े हुए होंगे, आपको बड़े बोरिंग लगेंगे और आसान भी लगेंगे। तो और कभी के बाद जो है वो इंटरेस्ट भी आएगा जब नई बातें होंगी, लेकिन असल गेम जो आएगा आपको मज़ा वो तब आएगा जब हम इसके सवालात सॉल्व करें होंगे। ठीक है, अब मैं अगली बात लिख रहा हूँ भाई। सर एक चीज पूछी, जी जी बताएं। ये 2 पॉइंट फार्मूला जो है इसमें हम ओ लेवल्स में जब हुआ करते थे तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे y इज इक्वल्स टू mx वो वही प्लस लिख रहा c। हूँ, वही लिख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा सही। अच्छा भाई, ये है वो फार्मूला जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम b लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों, बस ऐसे ही दिल कर रहा है, जिसमें स्लोप जो है वो m से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, और जो y इंटरसेप्ट है जिसको आप c कहते आए हैं, हम इसको फिल वक्त b से रिप्रेजेंट करें। वजह यह है कि हमने वो एक्स वाई इंटरसेप्ट के टॉपिक में पढ़ लिया है कि एक्स इंटरसेप्ट ए से और वाई इंटरसेप्ट बी से रिप्रेजेंट होता है, सिर्फ इस वजह से। अब अगर इससे रिलेटेड हम सवाल को देखें, अब बात ये कि भाई नहीं, हम तो जो गिवन सिचुएशन है उसके ज़रिए भी वही कर लें, तो आप बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं कि 2 पॉइंट फार्मूला लगाने की बजाय पहले आप ग्रेडियंट निकाल लें और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर दें, या और भी मुख्तलिफ रास्ते हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे, वो सब भी एप्लीकेबल हैं जब आपको मालूम करने के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको अलग अलग कैटेगरीज बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये है कि भाई सिचुएशन या डाटा कैसा भी हो, आप बस बजाय कुछ और निकाल कर फिर इक्वेशन निकालें, इन फार्मूलों से डायरेक्ट उन सिचुएशन से जवाब निकल सकता है। यानी कि अगर स्लोप दिया हुआ हो आपको, फॉर एग्जांपल 2/3,
और y इंटरसेप्ट दे दिया जाए, फाइव, तो उस सूरत में हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 2/3x प्लस 5, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 2x प्लस 15, यहाँ y आ गया, और फिर इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई वो हो गई 2x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप किसी और डेटा को इसी फॉर्मूले के ज़रिए भी डील कर सकते हैं, अगर कि आपको ये सारी चीज़ें यूँ निकाल लें उसकी उसी डेटा से, तो आ जाएगा जवाब। देख लें इसको भी, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, और फिर अगली बात हम शुरू करें, वो है भाई टू इंटरसेप्ट फार्मूला। इसमें क्या है कि फार्मूला तो ये है x/a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसमें जो x इंटरसेप्ट है वो a है और जो y इंटरसेप्ट है वो b से रिप्रेजेंट हुआ। फॉर एग्जांपल आपको सवाल में x इंटरसेप्ट दिया जाता है 2 और y इंटरसेप्ट दिया जाता है 3 और कहा जाता है कि भाई इक्वेशन निकालें, तो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद। तो ये हमने एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जो आइडेंटिटीज हैं वो देख ले एक नज़र सारी चीज़ों को। ठीक है भाई, यहाँ तक पहले तो कुछ पूछना हो तो पूछ लें, मैं ज़रा आपको सब चीज़ों का मुश्किल है, लोग अलग अलग अपने व्यूज़ देते हैं। देखिए, मुश्किल उसके लिए रहता है जो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करता। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर टॉपिक का अगर है तो सेट का पेपर डिज़ाइन ऐसे होता है कि वो जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है
वो पेपर को कर सकता है। और बेसिक्स के स्ट्रांग होने के लिए बेसिक को रिव्यू करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बिल्कुल हर बात को फ्रॉम स्क्रैच यानी कि फ्रॉम ज़ीरो बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ये होती है। असल आपको सारी चीज़ों का आइडिया तब होगा जब हम इन पर मौजूद टॉपिक्स के सवालात करेंगे, यानी कि समझिए कि अगली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि स्ट्रेट लाइन पर अभी हम सब सारी सारी चीज़ें डिस्कस करें, अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स डिस्कस होंगे। उसके बाद जब इंशाल्लाह हम उससे अगली क्लास में सवालात को डील करना शुरू करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा कि अच्छा जो हमने पढ़ा है वो था क्या। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो एक ही दिन में 4-4 टॉपिक्स भी हो रहे होंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि मैं अलग अलग दिन इसलिए उसको ब्रेक करके पढ़ा रहा हूँ कि आपकी उस पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट लिया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, स्लोप। फिर आज के दिन हमने पैरेलल का डिस्कशन किया, एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जिक्र किया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो गए। तो ये फिल वक्त हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टेटस है। इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। वो मैं आज इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो फिर सब जहन में जो है ना वो मिक्स हो जाता है। वो जुड़ा हुआ तो इस टॉपिक से, मगर वो थोड़ी सी अलग बातें, इसलिए मैं उसको आज नहीं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे बाद क्या आप लोग की अभी कोई और भी क्लास है? नहीं सर, लेकिन टेस्ट है इंग्लिश के का। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलें ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं सेशन को अपने एंड से लीव कर रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास जो भी होती है सर इमरान शेड्यूल बता देंगे आपको। हो सकता है अब आने वाले दिनों में क्लासेस की तादाद थोड़ी बढ़ जाए, तो वो सर इमरान आपको इन्फॉर्म कर देंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।